پہنچ رہا تھا. تو جو بات ہے نا وہ یہ کہ مطلب کل بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی, مگر آج جو اہم بات ہے نا ایڈیشنل چیز وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو پروبیشن پیریڈ مطلب آن لائن انٹرنشپس میں گزاریں گے نا تو انہیں اس کے بعد آفر لیٹر ملے گا, اس کے بعد وہ انٹرنشپ اسٹارٹ کر سکیں گے. اور کل جو ہے نا یعنی کل ایسا تھا کہ مطلب 3 مہینے کا انٹرنشپ آپ کرتے اور آپ کو آفر لیٹر نہ ملتا, مگر آج جو ہم نے مطلب ایڈیشن چیز اس میں نوٹ کی وہ یہ کہ ہم آپ کو آفر لیٹر جاری کریں گے, اس کے بعد آپ کو 3 مہینے آن لائن انٹرنشپ ملے گا. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے گیسٹ کی جانب. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویریفائر سے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. انٹروڈیوس یور سیلف پلیز. My name is Annie Wilson and I'm in the Techno Geeks as a verifier. So اب یہ بتائیے نا کہ ہمارے جو پوزیشن اوپن ہے نا سی ایس آر ویریفائر صحیح, اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیلف کلوزر. تو اب 3 پوزیشن ہیں نا, آپ ان تینوں کے بارے میں بات جانتی ہیں نا مطلب, تو یہ بتائیے کہ تینوں کا مطلب سیلف رینج کیا ہے. سی ایس آر کا سیلف رینج کیا ہے صحیح, سیلف کلوزر کا کیا ہے اور ویریفائر. سی ایس آر اگر دیکھا جائے تو سی ایس آر صرف ہوتا ہے کہ آپ کو فرنٹنگ کرنی پڑتی ہے, ایز لائک آپ نے کال آئی آپ کے پاس, یو ہیو ٹو جسٹ گیو اینڈ لیڈ ٹو کوشچنس from your customer. You ask only 2 questions from the customer and after that you can send the call to the verifier. تو سی ایس آر کا صرف یہ سین ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف 2 کوشچن لینے ہیں کسٹمر سے, اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اوکے ڈن ہے صحیح. اس کے بعد انہوں نے پھر آگے کال ہماری جاتی ہے ویریفائر کے پاس. سو جب ویریفائر ہماری کال ریسیو کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ویریفائر کی ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اس کا اپنا کام ہوتا ہے, اس کے اپنے کوشچننگ ہوتے ہیں. لیکن اگر سی ایس آر کی بات کریں تو اس کا جو آپ جیسے بیس سیلری بیسڈ اس کی جو سین سینیریو ہوتا ہے سارا, اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ بھائی ایکسپیرینس کے اوپر بھی ہوتا ہے, اور دوسرا نمبر پہ یہ کہ کسٹمر کے اور جو آپ کا ایجنٹ ہے جس کو آپ نے ہائر کیا ہے اپنے آفس میں, اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے. ٹھیک, جتنا کیپیبل آپ کا ایجنٹ ہوگا اتنے ہی کیپیبل جو آج کل ان کا مطلب جو سوچ ہے نا 90% لڑکیوں کا یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب ہم مطلب تھوڑا تعلیم حاصل کرتے ہیں 12 تک اس طرح 14 تک مطلب ایم ایس سی بی ایس وٹ ایور جو بھی نا, اس کے بعد ان کا پتہ چلا لگا کہ مطلب شادی کرنے چاہیے, وہ اس چیز پر فوکس ہی نہیں کرتے کہ مطلب ہم نے کسی فیلڈ میں جانا ہے. تو آپ اس کی بات نا کہ بہت ساری لڑکیاں ہیں نا, میں آپ کو ابھی آپ ہم لائف دیکھ رہے ہیں نا صحیح, تو ایف جی جی ڈی سی کی جو ہمارے پاس لڑکیاں یونیورسٹی کی صحیح, اس طرح بہت سی لڑکیاں جنہیں میں نے خود پڑھا ہے, تو انہوں نے مطلب میں نے ان کو بہت گائڈ کیا نا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ مطلب لڑکی جو شادی کرے گی بس یہ ختم نہیں, آپ کو ایک مطلب فیلڈ میں جب آپ جائیں گے نا, فار ایگزامپل آپ جاب نہیں بھی کرتے تو آپ کے جو مطلب بچے ہیں نا آنے والے, تو آپ ان کو بھی ٹرین کر سکتے صحیح نا. تو ضروری نہیں کہ آپ صرف جاب کریں صحیح نا. تو لڑکیوں کے لیے آپ مطلب اس بارے میں کیا پیغام دینا چاہیے نا کہ صرف مطلب شادی کرنا نہیں ہوتا, اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ صرف شادی کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا لائف کا, کہ آپ نے پڑھ لیا تو بس اس کے بعد آپ نے شادی کرنی. نو, یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان یور لائف. آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. اگر آپ کو خود کے بل پہ کچھ کرنا ہے نا تو آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. اور گرلس کو ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکی ہے تو گھر کی چادر کے بیچ میں ہی رہے, چھت میں ہی رہے تو اچھی لگتی ہے, وہ ہیرے کو زنگ نہ لگے تو بہتر ہی ہوتا ہے, وہ ہیرا گھر کے اندر ہی رہے تو خوبصورت لگتا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنے آپ کو کہتی ہے, یہ نہیں کہ لڑکیاں نہیں دل کرتا ان کو کام کرنا, تو ان اب ٹھیک ہے, لیکن کنیکشن اگر سلو ہے. وہ جو لڑکی کر رہی ہے کام, اگر وہ نہیں کر رہی, گھر والے الاؤ نہیں کر رہے اسے, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو اس کا اگر وہ لائف ہوتا ہے, گھر والے کہتے ہیں کہ یار بس بچی نے 10 کر لی ہے, ٹھیک ہے, اس کے شادی کی تیاری کرو, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے گھر والوں کو, گھر والے کرتے بھی ایسے ہیں موسٹلی. تو سین یہ کرنا چاہیے کہ بھائی اب لڑکی ہے, اس کا دل کر رہا ہے کام کرنے کا, وہ چاہ رہی ہے کہ بھائی میں کچھ ایسے مقام پہ پہنچ چکے جدھر لوگ مجھے پہچانے, تو اس کے لیے یہ سین ہم اس کو یہ پریفر ضرور کریں گے کہ بھائی اگر وہ ابھی نہیں, اگر فیملی کے ساتھ وہ چل کے اسٹینڈ لیتی ہے, فیملی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ شادی کرو, بالکل ان دا فیوچر اپنے بچوں کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اسٹڈی کرنا بہت میٹر کرتا ہے, گرلس کا تو اسپیشلی میٹر کرتا ہے کہ اگر وہ کام نہیں بھی کرتی تو ان کی اسٹڈی ہونا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل بی ایس, ایم ایس, ایم فل,
PhD कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की बाहर जाकर पढ़ेगी नहीं तो उसे माशरे का समझ नहीं आएगी कि माशरे में हो क्या रहा है, चलेगा कैसे सही। अब इसमें एक पॉइंट है ना कि मतलब मैं आपको अब एक चीज़ समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है सही, वो हिम्मत करती है सही ना, और मतलब वो आगे बढ़ना चाहती है, तो आपको पता है उसके जो मतलब रुकावट है ना, सबसे बड़ी रुकावट आजकल मतलब क्या है, मैं आपको अगर फॉर एग्जाम्पल के भी का बताऊँ ना, उसमें पता है क्या रुकावट है, उसमें जो रुकावट है ना वो मैं लाइव जो लड़के देख रहे हैं ना मैं उसको बता देता हूँ। आप पता है आप लड़कों को क्या प्रॉब्लम है, आप लड़के जो है मतलब हमेशा ये सोचते हो कि लड़की के साथ बात करने से नंबर लेने चाहिए सही ना, और आपको पता है आप मतलब ये गंदी सोच नहीं है इस वजह से, लड़की जो है मतलब अगर हिम्मत करे भी ना तो वो मतलब पीछे रह जाती है, केपी में ज्यादातर यही सिचुएशन है। तो मैं लड़कों को ये पैगाम दे रहा हूँ ना कि ये भी तुम्हारे साथ लड़की बेटी सही ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बुरी नज़र से देखूँ सही ना, तो फॉर एग्जाम्पल क्या मेरे घर में बहन और अम्मी नहीं, मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा सही ना। तो आपको पता है इससे मेरी मतलब कितनी अच्छी बात होती है सही ना, यहाँ पर मेरी कुलीग है और हम ऐसे बात कर रहे जैसे मेरी बहन हो सही ना, और ये मुझसे ऐसे बात कर रहे जैसे भाई, तो क्या मतलब लड़के और लड़की इस तरह रिलेशन कभी नहीं रह सकते सही ना। आप लोगों की सोच की वजह से जो है ना आपको अपना सोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की सोच की वजह से जो है ना ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा होती है जो हिम्मत नहीं कर पाती सही ना। तो ये लड़कों के लिए मेरा मतलब खसूसी पैगाम है ना। आप भी थोड़ा बताइए मतलब लड़कों के बारे में कि लड़कों को ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। हाँ, लड़कों को भी देखना चाहिए और लड़की को भी, दोनों को मैं यही कहूँगी कि दोनों को खुद को देखना चाहिए, ठीक है। अगर नो डाउट कि बाहर बंदा निकलता है, लड़की अगर बाहर निकलती है तो नो डाउट कि उसको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसकी लाइफ में फेस भी हम लड़के भी लड़कों की वजह आते से ही हैं। करनी पड़ते हैं। हाँ, इवन लाइक ये होता है कि अगर मेरे साथ अभी कोई रिलेशनशिप में है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर कोई बंदा मेरे साथ है, सबसे पहले तो उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक। दूसरे नंबर पे ये कि हम लड़कियां, वो कहते हैं ना, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेती है, यार अगला जो कह रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट कह रहा है, जो हमारे सामने खड़ा है वो बिल्कुल ठीक बात हमारे साथ कर रहा है, लेकिन हम बाकी हर एक चीज़ को भुला कर उसके साथ चलती हैं। लेकिन एट दी एंड ये जब होता है ना कि हमें मिलता है कि यार, जब हमें रिगार्ड होता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। रिग्रेट होता है, फिर हाँ हमें, जी। फिर हम उसको पछतावा होता है, हम कहते हैं कि यार हमने क्या किया, हम्म। हमने किस बंदे की चॉइस की, कि वो क्या था और क्या हुआ। लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ ये देखा जाता है कि लड़की की फिगर कैसी है, वो है कैसी, बात कैसे करती है, चलती कैसे है, ठीक है, बैठती कैसे है, उसकी कंपनी किन किन लोगों के साथ है, ठीक है। उसको ये नहीं देखा जाता कि यार वो घर से अगर बाहर निकली है तो वो किस वजह से निकली है, हाँ घर मजबूरी में होती है। उसकी क्या सिचुएशन चल रही है कि जिस वजह से वो बाहर निकल के इतने सारे लोगों में काम कर रही है। लेकिन ये बंदा कोई भी नहीं देखता, तो नसीहत तो सिर्फ यही है कि भाई खुद भी देखें, दूसरों को भी समझें। ये बात बेसिकली टच करने का सिर्फ एक ही मकसद है ना पर इस सेशन में, पता है क्या वो है कि मतलब आज आपको पता है मैं मेरी जो लाइफ है ना अभी तक मैं जितने लड़कों से मिला हूँ ना, जितने लड़के हैं, तो मतलब मुझे ये चीज़ बिल्कुल टच लगी ना, मतलब दिल पे लगी है कि हाँ मतलब लड़के ऐसे होते हैं, इस वजह से मतलब लड़कियों को प्रॉब्लम होता है बहुत सबको, क्योंकि मैंने मतलब बहुत सी लड़कियों को पढ़ाया सही। आप सब लड़कियाँ देख लोगे, आप लोगों ने मुझसे मतलब बातें की है इस तरह, और इसके बिना पर मैं कह रहा हूँ ना लड़के, आपको पता है आप लड़की भी देखते हैं ना, और लड़कों को पता है आपने मुझे मतलब अकेले में कहा है ना कि भाई इस तरह नंबर दो चीज़, तो आपको मतलब ये सोच बदलनी पड़ेगी, इस तरह कभी नहीं हो सकता नहीं ना। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान कैसे बदलेगा, ये बिल्कुल सियासतदान वगैरह से नहीं बदल सकता। अगर बदलना है ना आपको पता है कैसे बदलेगा, सिंपल तरीका बताता हूँ। मैं हूँ ना सही, मैं सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करूँगा, जो मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगा ना, और आप देख रहे हैं सही, आप भी अपने आप से स्टार्ट करो सही ना, ये अपने आप से स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान इस तरह बनेगा, इस तरह बिल्कुल नहीं कि हमारी सोच गलत सही ना, और हम मतलब इस तरह के काम करें, इस तरह की बातें करें। मुझे खुद पता है ना, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ देखा है, मैं हर एक के साथ मतलब बात की सही ना, तो इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता कि मतलब ये इमरान खान नाशिर ये चीज़ है, इससे बिल्कुल ठीक नहीं होगा सही ना। इससे थोड़ा बाहर निकले सही है, अपने आप को ठीक करें, मतलब ये कि मुझे जो है ना क्या करना चाहिए, अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए आपको, अपने आप से सिंपल इज दैट सही। अब आते हैं मतलब कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूड करने का हम पता है क्या करेंगे। अब थोड़ा बात करते से जो हमारा मकसद था, मकसद तो हमें नहीं था कि मतलब हमको अवेयरनेस जैसे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है अवेयरनेस है ना, ये नहीं कि हम आपको बस ये चीज़ बताए कंपनी में जॉब से ये चलती रहती है ना, ये बातें कभी नहीं होती, कम नहीं है, जॉब चली रहती रहती है, मगर पता है क्या असल चीज़ है अवेयरनेस है, आपकी सोच में तब्दील है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, मगर अभी थोड़ा बात करते हैं जॉब्स के बारे में। तो जॉब्स फर्स्ट ऑफ ऑल CSR वेरीफाई और सेल्फ ग्रोथ, हमने इससे वगैरह डिस्कस करें, तो आपने इंट्रोड्यूस किया कैसे कि वो कैसे कैसे काम करते हैं।
अब ये बताइए कि फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर लड़की है या लड़का है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आ गया, कल यहाँ पर आ गया इंटरव्यू के लिए और वो पास हो गया, सही है। तो आप मुझे बताइए कि मतलब वो कितने महीने मेहनत करे एज ए सी सर, मतलब स्टार्टिंग में कि वो सिर्फ क्लोजर बनेगा, समझ गए मेरी बात ना। तो इस तरह थोड़ा स्टेज एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर ग्रो करने की बात है कि हमारे पास अगर न्यूली फ्रेश बंदा कराया ना, तो हम उसको एज अ CSR लेंगे। उसको CSR इसलिए लेंगे क्योंकि उसको हमें स्टार्ट से लेके चलना है। जैसे अगर छोटा बच्चा होता है उसको हम नर्सरी से पढ़ाते हैं, वैसे ही उन्हें जो फ्रेश ही हमारे पास आते हैं उनको हमने जीरो से लेकर चलना होता है। बिल्कुल। हमने उनको ट्रेनिंग भी वैसे ही देनी होती है जैसे बिल्कुल हमारे पास न्यूली बंदा आया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको हर एक चीज पॉइंट सिखाना होता है और उसकी ग्रोथ का ये सीन होता है कि प्रोबेशन पीरियड अगर वो हिट करता है और उस प्रोबेशन पीरियड में जो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड है उसमें अगर वो अपने आप को साबित करता है कि यस आई कैन डू एवरीथिंग, यस आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, तो फिर उसमें ये है कि सीन उसके साथ ये होगा कि उसको हम ऊपर की तरफ अब सॉरी टू से थोड़ा मतलब आपको स्टॉप करना चाहिए, तो पता है क्यों ये पर मेरे जहन में पॉइंट है ना कि वैसे ना ये लोग सोच रहे होंगे ना कि ये तो स्ट्रेस चलता रहेगा, मगर थोड़ा सेल का भी बताइए कि मतलब पहले महीने में क्या सेल होगी, कम से कम थोड़ा बताइए ताकि उन्हें थोड़ा आइडिया हो ना। एज CSR देखा जाए तो हमारे ऑफिस में जो भी फिलहाल मिले थे वो कम से कम आई थिंक जो भी फिलहाल मिले वो 30 to 25 कम से कम 25, चलिए 25, 30 नहीं चले, सही, कम से कम 25, सही ना। और आपको पता है आप लोग मुझे हर वक्त कहते हैं कि मुझे ऐसे जॉब बताओ जिसमें 15,000 से या 20,000, मैं कहता हूँ नहीं है जॉब्स, आप कहते हैं नहीं, और कम से कम 25,000 कह रही, वो तो 30 कह रही थी, मैंने कहा 25,000। आपको पता है आप लोग यकीन ही नहीं करते, मैंने कहा आप इंटरव्यू के लिए आइए, सही, आप इंटरव्यू पास करें और आपको पता है आपको कम से कम 25 मिलेगा स्टार्टिंग में। आपने कहा ना कि वो 3 महीने, तो उसके बाद पर क्या होगा? 3 महीने अगर वो अपने आप को साबित करता है तो हमारी कंपनी ये ऑफर करती है कि हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। CSR से उसको वेरीफाई पे लेके जाते हैं, वेरीफाई पे इसलिए कि यार उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है, उसके अंदर इतनी विल पावर है कि वो बाकियों की बनस्पत बेहतर कर सकता है। फिर उसकी उसी हिसाब से इंक्रीजमेंट भी होती है सैलरी में, उसकी सैलरी भी ऊपर जाती है, उसके काम को देख के, उसके एक्सपीरियंस को देख के, उसकी पैशन को देख के होता है कि वो कितना कर सकता है और उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। परफेक्ट हो गया। तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, पता है क्या, आप लोगों को मतलब अगर ये बातें पसंद आई, सही ना, जिस तरह हमने अवेयरनेस आज के सेशन में ज़्यादातर फोकस उस पर किया, तो आपको पता है मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, थोड़ा फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच को बदलें। सेकेंड रिक्वेस्ट है कि आप मतलब वीडियो को थोड़ा शेयर करें, सही, शेयर करने के बाद आपको पता है क्या, फॉर एग्जाम्पल आप एक दफ़ा शेयर करते हो ना, एक दफ़ा नहीं, तो यही सोच जो है ना, अगर और लोग आपकी वजह से अडेप्ट करते हैं, सही है ना, तो मतलब दीन इस्लाम भी ये कहते हैं ना पॉजिटिव चीज़ें मतलब जो अप्लाई करें अपने आप में, दूसरे लोगों में स्प्रेड करें, तो काइंडली वीडियो को कम से कम शेयर कीजिएगा, सही ना, कम से कम एक दफ़ा, सही। थैंक यू सो मच, आज का सेशन एंड करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।